Assalamualaikum class. My topic is evolutionary perceptives and external structure and locomotion mammals. First of all, we study evolutionary perceptives. The beginning of tertiary period about 70 million years ago was the start of mammals. It coincided with the extinction of many reptilian lineage, which led adoptive radiation of mammals. Mammalian characteristics को evolved हुए almost 200 million years हो गए हैं और इनके अर्ली सिनेप्सिड फाइलोकोरम इनमें से कुछ हर्बीवोर्स हैं जो कि स्केलेटन अडॉप्टेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं एज अ प्रेडेटर्स और इनके एंटीरियर टीथ ऑफ अपर जार्स वो बहुत बड़े होते हैं और सेपरेट होते हैं पोस्टीरियर टीथ से और इन दोनों के अपर पोस्टीरियर और एंटीरियर टीथ के दरमियान एक गैप होता है A plate was arched which strengthened the upper jaw and allow air to pass over prey held in mouth. Legs were longer or smaller than those of ammonits. कुछ की टांगे बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और कुछ की बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं ये एडॉप्टेशन वक्त के साथ साथ होती हैं इनके अंदर middle of Permian mammals like reptilians has raised. Some were predators and some were herbivores. Teeth were concentrated on the front of mouth. इनके जो मतलब मिडल ऑफ पेरिमीनियन के मैमल्स इवॉल्व हुए थे उनके टीथ कुछ इस तरह थे कि वो माउथ के सामने कॉन्सेंट्रेटेड थे और ये हेल्प करते थे उनको शिकार पकड़ने में जबकि पोस्टीरियर टीथ का जो साइज था वो रिड्यूस हो गया था जो फर्स्ट मैमल थे वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थे और उनका साइज था 10 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ डेलिकेट स्केलेटन मोस्ट ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम स्टडी ऑफ देयर टीथ एंड स्कल फॉसिल्स In Jurassic period, most mammals were predators. Some were herbivores and have combined predatory and herbivorous feeding habits. Change in the middle ear and region of brain devoted in hearing and olfactory indicator. बहुत से zoologists ने speculate किया है कि जो small size with defined olfactory and auditory abilities हैं और इनमें color vision का lack होना mammals को suggest करता है कि they are nocturnal. ये हैबिट मैमल्स के लिए बहुत एडॉप्टिव थी और इनको मतलब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही टू अवॉइड कंपटीशन विद द लार्जेस्ट डायनासोर्स एंड स्मॉलर वन डायनासोर नॉट डाइवर्सिटी इन मैमल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि मैमल्स हैव स्पेशलाइज्ड टीथ मैमल्स हैव मिडल ईयर ऑसिकल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स hairs on skin have 4 limbs and produce amniotic eggs sweet glands on skin alveoli in their lungs 4 chambered heart brain covering new cortex and they reproduce sexually. Now external structure और locomotion mammals में कैसे होती है mammals की जो skin है वो दो तरह की layers पे consist होती है एक epidermal और एक dermal layer और ये दोनों layers में protect करती हैं from mechanical injury से invasion by microorganisms and sun's ultraviolet light से. Skin is also important in temperature regulation, sensory perception, excretion and water regulation. Hair is a keratinized derivative of dermis layer of skin. It is seated in an invagination of epidermis जिसको hair follicle कहते हैं. A coat of hair का plaque usually consists of 2 kinds of hair. जो longer guard hairs हैं वो protect करते हैं dense spot of shorter जो कि insulate करते हैं under hairs के. Because hair is largely a dead cells, it must be periodically molted. In some mammals, molting occurs gradually and may not be noticed. In others, hair loss occurs rapidly and may result in altered plaque characteristics. To avoid plaque characteristics, mammals acquire a thick coat of insulating under the hair, and plaque color may change. Here, the example के Arctic Fox takes a white or cream color with its autumn moth, and with the spring moth, the Arctic Fox acquires a gray and a yellow plaque. Hair is also important for sense of touch. Mechanical displacement of hair stimulates nerve cells associated with the hair root. गार्ड हेयर्स जो होते हैं स्किन के ऊपर वो समटाइम अपने आप को इस तरह मॉडिफाई कर लेते हैं कि वो थिक शाफ्ट हेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब वो थिक शाफ्ट हेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको विब्रेस्ट्री कहा जाता है विब्रेस्ट्री लेग्स नोज माउथ और मैनी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के अराउंड पाए जाते हैं देयर रूट आर रिचली इनोवेटिव एंड सेंसिटिव टू डिस्प्लेसमेंट अ ब्रांड ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड erector pili. These muscles run between the hair stand up layer
increasing the amount of hair trapped in the plaque and improving its insulating properties. Erectile pili muscles. Here a graph shows lower order resonance and higher order resonance of the vibration. एरेक्टर पीली जो मसल्स थे वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो खुद ही मैमल्स को फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में मतलब हेल्प करता है। और जब कोई मतलब थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तो हेयर स्टैंड्स ऑन द एंड एंड मे गिव द परसेप्शन ऑफ इंक्रीज साइज एंड स्ट्रेंथ। हेयर कलर मे डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट, और वो पिगमेंट मेलानिन होता है जो कि इनके अंदर पाया जाता है, और क्वांटिटी ऑफ हेयर इन द हेयर शाफ्ट। The plaque of the most mammal is dark above and lighter in the underneath. और ये पैटर्न उनको less conspicuous बनाता है under the most conditions. Some mammals advertise their defense using aposematic coloration. ये एक डिफेंस कॉलरेशन होती है कि इसकी वजह से उनको अपने आप को डिफेंस करने में हेल्प होती है। Plaque is reduced in large mammals from hot climates and in some aquatic mammals that often have fatty insulation. Now here about claws. Claws are present in all amniotic classes. इनका फंक्शन होता है लोकोमोशन, ऑफेंसिव सिस्टम और डिफेंस बिहेवियर में। Claws form from accumulation of keratin that cover the terminal phalanx of the digits. Some mammals में ये specialized होकर nails और hooves में convert हो जाता है। स्पेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं मैमल्स में जो कि एसोसिएटेड होते हैं हेयर रूट फॉसिकल्स से, और ये ऐसे सेक्रीट करते हैं जो कि स्किन को लुब्रिकेट करता है और वाटर प्रूफ बनाते हैं। और कुछ मैमल्स में सोडोफोरस ग्लैंड भी पाए जाते हैं। ये ग्लैंड सिर्फ वाटरी सेक्रीशंस करते हैं जिसकी वजह से एवेपोरेटिंग कूलिंग में हेल्प होती है। और कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत लार्ज होते हैं जो कि सेक्रीट करते हैं मिक्सचर ऑफ साल्ट, यूरिया एंड वाटर। Here a diagram of sebaceous glands found in the mammals. और सेडिफरस ग्लैंड जो थे वो माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन द स्किन कन्वर्ट टू ऑडिफरस प्रोडक्ट्स। अब इनके अंदर मस्क ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि फेस फीड के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि ये बहुत सारे फेरोमोन सेक्रीट करते हैं। उनका भी यही फंक्शन होता है कि वो डिफेंस के लिए हेल्पफुल होता है, सेक्स रेकग्निशन के लिए हेल्पफुल होता है, और टेरिशियल बिहेवियर के लिए होता है। मैमरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल्स में पाए जाते हैं और इनको कोई फंक्शन नहीं होता मेल्स में। Mammary glands are probably derived from evolutionary from apocrine glands and usually contain substantial fatty deposits. Here are some glands found in the mammal. Forehead gland on the front of the face, anal gland, tarsal gland, metatarsal gland, and interdigital gland. Examples are monotremes have mammary glands that lack nipples. The glands discharge milk into a dispersion on belly where the young lap it on up. Some points on the worldwide distribution of mammals. Mammals जो है वो worldwide distribution है. It has been said that mammals have a wider distribution and are more adaptable than any other single class of animals, with the exception of certain less complex forms such as arachnids and insects. The versatility in exploiting Earth is attributed in larger part of ability of mammals to regulate their body temperature and internal environment both in excessive heat and arbitrary and in severe cold. Here are some pictures of mammals found worldwide distribution. This is the last page of my presentation. बाकी का प्रेजेंटेशन मेरे ग्रुप फैल्स करेंगे सर। जी बेटे क्या कह रही हैं आप? जी हेलो। मैं क्या सर मेरी प्रेजेंटेशन एंड हो गई है, अब नेक्स्ट इससे अगला जो टॉपिक है वो। अच्छा अच्छा बेटे आपका मैंने निशान लगा लिया कि आपकी हो गई है, अच्छी है। तो ये कुछ इस तरह की भी कोशिश किया करें कि जैसे मैं कभी कभी वो आपको
जब पढ़ा रहा होता हूँ तो बीच में कोई अहम बात होती है ना समझाने वाली, उसको उर्दू में पंजाबी में कोई एग्जांपल दे के वो बात समझाने की कोशिश करता हूँ ना। तो इस तरह जो यस आप सर। समझते हैं कि अहम बात होती है ना, वो साथ साथ बच्चों को समझाया करें अच्छी तरह से। तो ये ठीक यस है। सर। ठीक है, जो अगला स्टूडेंट है उसको दें। ठीक है सर। हाँ शाबाश। ठीक है सर। अच्छा यार, ये अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, मुझे याद आया, इस वक्त रोल नंबर 431 यहाँ मौजूद है। यस सर। अच्छा जीना बेटे, आपने वो बड़ा एहतजाज किया कि मेरी एबसेंट लग गई, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह के बंदो, आपकी तो तकरीबन वो 100% के करीब है, तो इसमें ऐसी परेशानी वाली बात कौन सी थी? नहीं सर, वो ना पता क्या है, मैंने देखी तो मैंने कहा शायद मुझसे क्लासेस मिस हो गई हुई हैं। लेकिन मैंने जब चेक किया क्लासरूम से तो वो मेरी प्रेजेंट थी, तो मैंने कहा चलें वो कोई कोई बात नहीं, बात नहीं। अटेंडेंस अब तो पूरी देखिए, है। आपको नहीं पता कि क्लासरूम से आपकी एब्सेंस ढूंढ के लगाना ये कितना मुश्किल काम है। हमें पीरियड लेने में इतनी दिक्कत नहीं है जितना आपकी अटेंडेंस ढूंढ के लगाने में है। तो ये बड़ी बरीक बरीक वो लिस्ट होती है, उसमें कोई एक आध आगे पीछे हो जाए तो उसमें कौन सी टेंशन है। मैंने कभी किसी के लेक्चर नहीं छाड़ किए। तो इस तरह जी की सर, कोई फजूल बात टेंशन नहीं। ना, फजूल टेंशन इस तरह की ना लिया करो। और भी कोई स्टूडेंट अगर किसी की लग जाए एबसेंट तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि मैं लगाता भी कितनी हूँ। आपको याद होगा जी पिछले सर। सेमेस्टर में कि अगर पीरियड हुआ नहीं हुआ तो मैंने तो सबकी हाजिरी भी लगाई है। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने वैसे आपको बताया था कि सर मेरे इस तरह हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे अगला स्टूडेंट जो है ना। अच्छा, आप सब बेटे अच्छी तरह से अपनी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करें बेहतरीन तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि इसी बुक से आप उसकी एक्सप्लेनेशन दें अपनी प्रेजेंटेशन की। आप अच्छी सी अच्छी बुक लेके अच्छी से अच्छी डायग्राम नेट से अवेलेबल हैं तो बच्चों के अंदर शौक पैदा करें, मेहनत करें। ठीक है ना? कितनी शानदार टेक्नोलॉजी है, जी आप सर। अंदाज़ा करें कि आप अपने घर में बैठे हैं, मैं भी अपने घर में बैठा हूँ और प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं। तो बड़ी शानदार है। मैं अभी ये प्रेजेंटेशन अपने लैपटॉप पे देख रहा था। हाँ मुझे याद आया कि जब आप प्रेजेंटेशन का पेज शेयर करें ना तो उसको 150 तक जूम कर लिया करें। वो ज़रा बड़ा हो जाता है, लेकिन 150 से ज़्यादा करें तो फिर वो मैनेज नहीं होता। तो 150 तक जब जूम कर लेंगे ना तो उसका फ़ायदा ये है कि जो स्टूडेंट्स मोबाइल के ऊपर देख रहे होते हैं ना, उनको भी वो चीज़ें वाज़े नज़र आती हैं। अगर जूम ना करें तो जो लिखाई है वो बहुत बारीक होती है, फिर वो मोबाइल पे नज़र नहीं आती। तो 150 तक होना तो फिर जी भी सर। गुजारा हो जाता है। ठीक है ना? चलिए शाबाश, अगला ओके स्टूडेंट है सर। जी, वो आगे आ जाए। तो सर मैं ही हूँ, मुझसे स्क्रीन शॉट नहीं और शेयर नहीं हो रही, तो वो ना लाइबा कर रही है मेरी। कोई बात नहीं, हो जाएगी अभी, कोई बात नहीं। यही तो आपकी ट्रेनिंग है कि कैसे करनी है ये सारा कुछ, यही तो। Assalamualaikum class, my name is Hina Habib and today my presentation topic is circulation and gas exchange। के बाद नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि पहला हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन का, कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरह मैमल्स में होती है। हम लोग जानते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स के जो हार्ट है वो उनका क्या है, वो सिमिलर है। उनमें जो दो चीज़ें हैं मेन है, पल्मोनरी सिस्टम और सिस्टमेटिक सर्किट जो होते हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों का काम क्या है, वो डिफरेंट है। हार्ट के दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। इन दोनों का काम क्या होता है, डिफरेंट होता है। हार्ट साइड जो लेफ्ट साइड होती है हार्ट की, वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लंग्स से लेके बॉडी को देती है, जबकि राइट साइड जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो बॉडी पूरी से कलेक्ट करती है और लंग्स को देती है। लंग्स को किस लिए देती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होती है
तो वो ऑक्सीजन जो होती है वहाँ पे ब्लड के साथ मिक्सअप होकर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफर कर देती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट क्या काम करते हैं। जो पल्मोनरी है उसका ये काम होता है कि ये वो रास्ता है, वो जगह है जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लेकर लंग्स को दिया जाता है और वापस जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट को दिया जाता है। ये क्या होता है, हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो होती है कि ये वो रास्ता होता है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लेकर बॉडी टिश्यू को दिया जाता है और फिर वापस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी टिश्यू से लेकर हार्ट को दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है। मेन इसमें बात ये है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये होती है कि इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ सिमिलर फीचर्स इन स्पीशीज ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि विंग्स की तब्दीली आई थी बैट्स में, इंसेक्ट्स में या बर्ड्स में, स्पीशीज सेम है, इनकी जो चेंजेस आई थी वो भी सेम थी लेकिन टाइम क्या था वो डिफरेंट था। उसके बाद हमारे पास है कि इसके जो सिनेप्सिड हैं वो रिप्टेलियन लिनीज से मिलते जुलते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट adoption in the circulatory system of mammalian concern the distribution of respiratory gases and nutrients in the fetal blood occurs across the placenta। उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो fetal होता है उसकी जो ब्लड वगैरह एक्सचेंज हो रही होती हैं, गैसेज एक्सचेंज हो रही होती हैं, वो किसके जरिए हो रही होती हैं, प्लेसेंटा जो होता है उसके जरिए जो हो रही होती हैं, एक्सचेंज हो रही होती हैं ब्लड जो है। और यहाँ पे जो राइट जो ब्लड जो होता है फीटस में राइट एट्रियम से इंटर होगा वो क्या होगा, हाईली ऑक्सीजनेटेड होगा। और राइट एट्रियम से पासिस होने के बाद ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में इंटर होगा, बजाय इसके कि ब्लड लेफ्ट एट्रियम के ओपनिंग वाल जो प्रेजेंट होते हैं आर्टिया में वहां से इंटर हो। जो पेटल का जो लंग्स होते हैं वो इन्फ्लेटेड होते हैं, वहाँ पे जो प्रेशर होता है गैस का वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसके therefore most of the blood entering the right atrium by the passes the right passes the right ventricle and passes instead into the left atrium through a valve opening। इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि जब बर्थ होती है तो प्लेसेंटा जो होता है वो रिमूव हो जाता है। इस दौरान जो रेजिस्टेंस होती है ब्लड फ्लो की लंग्स में वो रिड्यूस हो जाती है और वहाँ पे ब्लड जो होता है फ्लो जो होती है ब्लड की फ्लोइंग क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड जो होता है वो फ्रीली बॉडी में मूव करता है। इन एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट्स ऑल फ्लूइड्स इनटू अ कैविटी। When the animals move the blood inside the cavity moves freely around the body in all direction। इसमें ब्लड क्या होता है वो बॉडी के ऑल डायरेक्शन में फ्रीली मूव करता रहता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है कि ब्लड जो है वो एक क्लोज सिस्टम में जो है वो मूव करता रहता है, अपनी ब्लड वेसल्स को लीव नहीं करता, उनके अंदर ही मूव करता रहता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है गैसेज एक्सचेंज। मोस्टली एनिमल्स में गैसेज एक्सचेंज जो होती हैं वो ओरल कैविटी के जरिए होती है, नेजल कैविटी के जरिए होती है। हम में जो होती है वो लंग्स हम प्रेजेंट होते हैं और हमारे लंग्स जो हैं वो स्पॉन्जी के से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं क्योंकि ये स्पॉन्जी लाइक होते हैं, इनमें इनसे गैसेज एक्सचेंज होती रहती हैं। मैमल्स लंग्स रिजेंबल्स अ हाईली वेस्कुलर स्पॉन्जी रादर देन दी सैक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है एम्फीबियंस की या रिटाइल्स की उससे मिलने या उससे रिजेंबल की बजाय ये इससे ज्यादा मिलते जुलते हैं, वेस्कुलर स्पॉन्जी से ज्यादा मिलते जुलते हैं। और हमारे ये बॉडी में एक तो डायाफ्राम जो है वो होते हैं जिसका मेन फंक्शन ये डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, जब हम इसमें ये कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। अब गैसेस एक्सचेंज दो तरह के होते हैं, एक होती है एक्सपायरेशन होती है, दूसरी इंस्पायरेशन होती है।
इंस्पायरेशन में जो डायाफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और रिब केज क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और एयर क्या हो जाती है, लंग्स में इंटर हो जाती है। जबकि एक्सपायरेशन जो है वो इसके अगेंस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि डायाफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है और रिब केज क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है और एयर जो होती है वो बाहर आउट हो जाती है। द कंट्रैक्शन ऑफ द अदर thoracic and abdominal muscle can produce forceful exhalation. Thank you. और इसमें ये है कि जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्कोप, ये लंग्स के अंदर एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको एल्वोलाई कहते हैं। ईच एल्वोलस इज सराउंडेड बाय अ रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गैसेस। इनके जरिए क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। Mammals have a dome-shaped diaphragm that separates the thoracic from the abdomen, providing a separate chest cavity for breathing and pumping blood. ये क्या करता है, ब्रीथिंग और पंपिंग ऑफ ब्लड में इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन टू क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम इन द लंग्स। दे फील the lungs fill with the air and gases exchange follows। वही के एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के जरिए जो होती है वो गैस इन और आउट होती जाती है लंग्स से। सर फर्स्ट मेरा यहीं तक था। आपके बेटे ग्रुप में और तीसरा मेंबर भी है कोई? मैंने कहा आपके ग्रुप में कोई तीसरा मेंबर भी है या आप दो ही थी? नहीं सर हैं। अच्छा, तो चलें एक और कर सकता है प्रेजेंट, अगर किसी किसी ने करनी है तो। सर आई थिंक निम्रा या शांजे हैं, इनमें से कोई एक देगी। देखने में मौजूद हैं, करना चाहती हैं तो आ जाएं। सीआर साहब मौजूद हैं? यस सर। अच्छा, आ रही हैं फिर? यस सर, आ रही इन्हीं के ग्रुप की है शायद वो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सर निम्रा का शायद नेट प्रॉब्लम बन गया, वो उसका हो ही नहीं रहा, नेट नहीं हो रहा, उसकी आज प्रेजेंटेशन थी। निमरा के बाद भी है कोई या नहीं? सर शांजे है, वो भी चांस है सर, रूल नंबर 38। चलें वो ट्राई कर ले अगर उसका होता है कनेक्ट।
सर शांत से कह रही है कि उसको कनेक्ट करने में 2 मिनट लग रहेंगे, तो आप 2 मिनट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं वेट। इनका किस तरह का है देखिए फादर सॉरी सर, आपको उनकी वजह से वेट करना पड़ा, लेकिन निंदा कह रही है कि उसका ना नेट का इशू आ रहा है, वो हर जगह जाके नेट का ट्राई कर रही है लेकिन उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, थोड़ा ऐसा शांति से करें, try कोई करिए। बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी कल पे रख लें। अब इसको क्लोज कर देते हैं, टाइम वैसे भी इसका 5 मिनट रह गया है मीटिंग के खत्म होने का, ठीक है ना? जी सर, सर सॉरी ये कल दे सर, देंगे। आपको करना कोई पड़ा। बात नहीं, कल दे देना, अब बहुत टाइम है हमारे पास, अल्लाह कारगर, फिक्र नहीं करनी, सारी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी सर, सर ओके ठीक है। हाँ एक बात और पूछनी थी सर। हाँ। सर ये जो हमारा एग्जाम होगा इसमें मिड और फाइनल दोनों का सिलेबस शामिल होगा? हाँ ज़ाहिर है, वो सुना ये है कि मिड के लिए जो आपने 2 करवाई हुई है ना जमा, वो जो असाइनमेंट्स हैं उनमें से नंबर लग जाएंगे और फाइनल जो है वो सारे सिलेबस में से हो जाएगा, इस तरह की बात सुनी है। तो अब मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा। जी सर, हाँ, मतलब हम ये फाइनल का सिलेबस स्टार्ट कर दें। फाइनल का तो लाजमी करें ना, लेकिन मिड का भी साथ ये असल में देखिए आपका काम आसान हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप टेंशन में क्यों हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन याद करना मुश्किल होता है, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है ना, इसको तो ज़हन में बिठाना बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पे हर चैप्टर के तकरीबन 20, 25 या 30 बनते हैं एमसीक्यू, तो उनको आप सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा गौर से देखने में याद हो जाते हैं, ठीक है ना?
तो ये तो बड़ा ही आसान आपके लिए काम हो गया है कि अगर एमसीक्यू का वाला पेपर आता है या शार्ट क्वेश्चन वाला आता है, बहुत आसान हो गया। बशर्ते कि आप बस जस्ट इसको ना थोड़ा सा समझ के बार बार पढ़ लें। थोड़ा बहुत पढ़ना तो जरूरी है। अब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना पढ़ें और आप कहें जी कि हम पास भी हो जाएं और हम अच्छे नंबर भी ले जाएं, ऐसे नहीं होता। थोड़ी बहुत हिम्मत आप करें तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़ कह दूं, किसी ने बात करनी है कोई? नो सर, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह।